Good morning students. I hope all of you are fine. My name is Rashmi and I am from Raj International School. Today I am going to start chapter number 4 and the name of the chapter is Materials, Metals and Non-Metals. So in this chapter we will discuss some physical and chemical properties of metals and non-metals and uses of metals and non-metals in our routine life. And at the end of this video lecture, you will be able to understand about the matter, elements and physical properties of metals and non-metals. Just I have written 8 properties here: physical state, luster, hardness, sonority, malleability, ductility, conductivity and the melting and boiling points. We will discuss all these properties one by one. Students, we use different materials at our home, like we use pen, paper, book, water, etc. And all these materials are different from regarding some aspects like in the shape, size and composition. But one thing is common in all the materials that they are made up of, they have some mass and occupy space. So we can say that anything that has mass and occupies space is called matter. We can understand it by the following example. Just when we put a book in our hand, then we feel it is heavy, means it has some mass. And after putting this book on the table, just we see that it is occupying some space also. So anything that has mass and occupies space is called matter. And scientifically, matter is made up of elements. So we can say that elements are the simplest form of the matter. यानी किसी भी मैटर को बनाने के लिए जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो हमारे एलिमेंट्स होते हैं. एलिमेंट से मिलकर मैटर बनता है और मैटर से जितनी भी चीजें, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो किसी न किसी मटेरियल का उसमें यूज किया जाता है. एलिमेंट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. नंबर 1 मेटल्स, नंबर 2 नॉन मेटल्स एंड नंबर 3 मेटलॉइड्स. Till now, 118 elements are discovered by the scientists, and out of these, 92 are natural and rest are synthetic. About 80% of these elements are metals. So, we will discuss firstly the physical properties of metals and non-metals. Number 1 property, physical state. Physical state means दिखने में metals जो होते हैं या non-metal है वो किस तरीके के होते हैं. तो generally we can say or the most of the metals are found in the solid state except the mercury. Mercury is the only metal that is found in the liquid state at room temperature. And regarding the non-metals are found in all the 3 states. Like sulfur is found in the solid state, bromine is found in the liquid state, and oxygen and nitrogen they are found in the gaseous state. Second one, luster. Luster means shine, चमक. मेटल्स की एक प्रॉपर एक उनकी चमक होती है. दे हैव अ शाइनी अपीयरेंस. अगर हम किसी फ्रेशली कट मेटल को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें उसकी एक चमक नजर आती है बेसिकली. एंड दैट्स व्हाई वी यूज द गोल्ड एंड सिल्वर टू मेक द ऑर्नामेंट्स. ज्वेलरी बनाने में सिल्वर का या गोल्ड का यूज किया जाता है. थर्ड वन इज हार्डनेस. जो मेटल्स हैं वो बहुत हार्ड होते हैं और स्ट्रॉन्ग भी होते हैं. तो जनरली वी कैन से मेटल्स आर हार्ड एंड सॉफ्ट एक्सेप्ट द sodium and the potassium. Both are the metals, but they are very delicate, they are very soft, and we can cut these metals with the help of knife. इनको हम चाकू से भी easily काट सकते हैं. They are counted in the metals, but they are very soft. Likewise, non-metals जो solid state में भी अगर जो पाई जाती हैं तो वो भी इतनी ज़्यादा hard नहीं होती है. अगर हम metal के से compare करें वो soft ही होती हैं या हम कह सकते हैं brittle होती हैं. अगर किसी भी नॉन मेटल को, कॉपर कार्बन एक नॉन मेटल है और कार्बन को अगर हम कार्बन पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, बेसिकली उसको हैमर्ड कर रहे हैं और या प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो जस्ट वी विल ऑब्जर्व दैट इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द पाउडरी मास. मींस उसका चूरा बन जाता है. तो इट मींस वी कैन से दैट दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द ब्रिटलनेस. कि जो नॉन मेटल सॉलिड स्टेट में भी जो पाई जाती हैं वो ब्रिटल होती है. Fourth property is sonority. Sonority means metals have the ringing sound. किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करें, बेसिकली अगर मैंने एक प्लेट लिया और स्पून से उसको स्ट्राइक कर रही हूँ और उसमें एक जो साउंड प्रोड्यूस होती है, जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, उस प्रॉपर्टी को हम सोनोरिटी कहते हैं. तो मेटल्स जो है वो सोनोरिटी को शो करती हैं.
इसीलिए जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और जो बेल होती हैं, स्कूल बेल है हमारी, या जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके जो वायर्स हैं, स्ट्रिंग्स जो हैं वो हमेशा मेटल्स के ही बनाए जाते हैं। और नॉन मेटल्स जो होती हैं वो नॉन सोनोरस होती हैं, वो सोनोरिटी को शो नहीं करती। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेलेबिलिटी। अब यहाँ पर एक नया वर्ड आया मेलेबिलिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेलेबिलिटी? मेलेबिलिटी मीन्स metals if we just pressure when we apply the pressure on the metals, just we can convert the metals into the thin sheets। तो हम उनको पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और इस प्रॉपर्टी को मेलेबिलिटी कहते हैं। तो दिस वन इज द मेलेबिलिटी। और नॉन मेटल्स जो होती है वो नॉन मेलेबल होती है और नॉन डक्टाइल भी होती है। तो अब हम डक्टिलिटी को समझेंगे कि डक्टिलिटी क्या है। डक्टिलिटी जस्ट वी कैन कन्वर्ट द मेटल्स इनटू द थिन वायर, पतले तार में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेलेबल का मतलब थिन शीट में, तो जितनी भी शीट्स होती हैं जो हमारी रूफ के लिए यूज किया जाता है, यूज करते हैं हम बेसिकली, तो जो लोहे की चद्दरें होती हैं या फिर और भी जो ज्वेलरी बनाने में जो हम उसका शीट्स का यूज करते हैं किसी भी गोल्ड या सिल्वर की ज्वेलरी बनाने के लिए, बिकॉज गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलेबल मेटल। और लाइकवाइज डक्टिलिटी कि जस्ट वी कैन कन्वर्ट द मेटल इनटू द थिन वायर, पतले वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेलेबल का जो एग्जांपल है वो जस्ट एल्यूमिनियम फॉइल बहुत अच्छा एग्जांपल है। खाने को, फूड आइटम को रैप करने के लिए हम एल्यूमिनियम फॉइल का यूज करते हैं। और इसी तरीके से जो सिल्वर फॉइल है वो स्वीट्स को डेकोरेट करने में यूज किया जाता है। तो यानी कि हम देख सकते हैं कि मेटल को हमने कितनी पतली शीट में कन्वर्ट कर दिया और उसको हम रूटीन लाइफ में यूज भी कर रहे हैं। डक्टिलिटी वायर्स, तो जो वायर है, इलेक्ट्रिक वायर जो होते हैं, कॉपर के वायर हैं, सिल्वर के वायर हैं, गोल्ड के वायर हैं, हम मेटल को कन्वर्ट कर सकते हैं वायर में, इसीलिए हम उनका यूज करते हैं। सिल्वर जो होता है बेसिकली या गोल्ड है, इनका यूज ज्वेलरी बनाने में या कहीं पे और भी जो डेकोरेटिव आइटम्स होती हैं उनमें हम उनका यूज करते हैं। तो ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी जस्ट वी यूज द मेटल्स। नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल एंड नॉन मेलेबल होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मीन्स कि मेटल्स जो होती हैं वो गुड कंडक्टर होती हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों की। दो चीजों को लेकर हम यहाँ पे समझेंगे, कंडक्टिविटी रिगार्डिंग द हीट एंड कंडक्टिविटी रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स बहुत अच्छी कंडक्टिविटी शो करते हैं और उसपे भी जो सिल्वर का अगर हम एग्जांपल लें इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग, सिल्वर इज द मोस्ट कंडक्टिव मेटल। सिल्वर बहुत अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। उसके बाद सेकंड नंबर आता है कॉपर का और थर्ड आता है एल्यूमिनियम का। लेकिन सिल्वर बहुत कॉस्टली होती है इसलिए हम उसको वायरिंग में यूज नहीं कर सकते। तो हम घरों में जो हमारे वायरिंग में जो इलेक्ट्रिक वायरिंग में जो यूज किया जाता है मेटल, वो हमारा कॉपर मेटल होता है। हीट की कंडक्टिव होते हैं मेटल्स, इसीलिए यूटेंसिल्स को जो है मेटल का बनाया जाता है। तो नीचे वाला जो पार्ट होता है, नीचे वाला जो किसी भी यूटेंसिल का जो बॉटम वाला पार्ट है वो उसको हम हीट अप करते हैं और जस्ट पूरा यूटेंसिल जो है गर्म हो जाता है। अगर अपर पार्ट को अगर आप टच करेंगे तो वो भी गर्म होगा। मीन्स जो हीट है वो कंडक्टिविटी को शो कर रहा है, वो नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर पा रही है थ्रू द मेटल। तो दिस वन इज कंडक्टिविटी। और नेक्स्ट वन इज मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पिघलना, बॉइलिंग बॉयल होना। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है मेटल्स का वो बहुत ज्यादा होता है, हार्ड बहुत ज्यादा हाई होता है, और नॉन मेटल्स का जो होता है वो कम होता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों, सिर्फ ग्रेफाइट जो है उसी का ही मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होता है, ज्यादा होता है। बाकी सभी नॉन मेटल्स का मेटल्स के रिगार्डिंग ज्यादा होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।